In this class, we'll be dealing with some questions regarding the stopping side distance, the overtaking side distance, and the super elevation. I have already covered these topics. Now, let's practice some questions so that it will become easy for you to apply the concept which we have learned in the earlier classes. So let's start with the stopping side distance. I told you that the stopping side distance is basically the minimum side distance that must be available in the front of driver so that he can easily stop his vehicle before colliding. ड्राइवर के सामने इतना गैप अवेलेबल होना चाहिए कि वो आराम से अपना व्हीकल रोक ले बिना एक्सीडेंट के. दिस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.278 which is 5/18 v किलोमीटर पर आवर into the reaction time plus 0.278 into v in किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. दिस इज म्यू प्लस माइनस n. ये हमारे पास रिलेशन था. नाउ how the question can be asked? The question can be asked like this. If they are saying that there is a vehicle which is traveling with a speed of 60 km per hour, speed दी हुई है आपको 60 km per hour kmph. They are asking us to calculate the stopping side distance. The stopping side distance when the gradient on which this vehicle is moving is an up gradient, with a slope of, they're saying that the slope is 2%. It means that you have to calculate the stopping side distance when the gradient is 2%. Let's see this. It means that this gradient will be somewhat like this, which is the angle. Now they have provided us that the value is 2%. This is the theta. So basically tan theta is 2% here. तो आपको बोला जा रहा है this is a vehicle which is moving up gradient. You know that the stopping side distance for this particular case will be 0.278. स्पीड कितना है इसका 60. टाइम कितना होता है 2.5. हमेशा ध्यान रखना 0.5 से 5 सेकंड के बीच में टाइम होता है, तो इन दोनों के बीच का टाइम लेते हैं हम, which is 2.5 सेकंड. तो SSD is 0.278 into VV into T plus this is 0.278 into 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. म्यू हमेशा 0.35 के आसपास होता है, बाकी जो क्वेश्चन में दिया है वही लेना, प्लस ऊपर जा रहा है तो प्लस 2/100. You can calculate this value. This is the stopping side distance for this particular case. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है यहाँ पे, वो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने कैसे निकाला था? ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने ऐसे निकाला था कि हमारे पास एक सरफेस था, उस सरफेस के ऊपर ये व्हीकल चल रहा था एट अ स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर. इसने ब्रेक लगाया था और एक सर्टेन डिस्टेंस s ट्रेवल करके ये इसकी स्पीड जो थी वो 0 हो गई थी, रुक गया था. ब्रेक लगाया था, ब्रेक लगाने के बाद s डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया था और वो s डिस्टेंस ट्रेवल करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक गया था जहां इसकी स्पीड 0 हो गई थी. तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय दिस हाफ mv स्क्वायर, द काइनेटिक एनर्जी लॉ. दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एक ही फोर्स होगी जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है. इसने ब्रेक लगाया है, ब्रेक लगा के इसकी स्पीड यहाँ पे v है, यहाँ 0 है, इसका मतलब v से 0 तक गई है. काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, वो लॉस सिर्फ एक ही फोर्स की वजह से हुआ है, व्हिच इज द फ्रिक्शन फोर्स. दिस इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज हाफ mv स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू mg into s. This m will get cancelled out. You'll get s is equal to v square upon 2g mu. This is the distance or the skidding distance which the vehicle will cover after the application of brakes. Now, the question can also be asked like this, that this is a vehicle which is moving with a speed of, like they're saying this is 80 km per hour. The vehicle has applied the brake and after covering a certain distance of s, its speed become 40 km per hour. 40 बन जाती है. तो आपसे कहा जा रहा है डिस्टेंस बताओ. देखो यहाँ एक चीज क्लियर है, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो हाफ m 80 स्क्वायर माइनस हाफ m 40 स्क्वायर है. तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहाँ पे दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है यहाँ पे? तो फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज म्यू mg. डिस्टेंस कितना है s. तो यहाँ से भी यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s. एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल है आपके पास. अगर आप इस क्वेश्चन को कंसीडर करके समझना चाहते हैं तो यू कैन कंसीडर दिस क्वेश्चन आल्सो. आपके पास ये एक इंक्लाइन सरफेस दिया हुआ है. दिस इज एन इंक्लाइन सरफेस. And now for this inclined surface, there is a vehicle which is moving downwards. You know that this is mg. This will be mg sin theta. And this will be mg cos theta. As the vehicle is like moving downwards, let's say that this vehicle has applied the brakes here. When the vehicle has applied the brakes at this point, it means that the kinetic energy will decrease from half mv square to 0 at some point. It means that the total loss in kinetic energy in this particular region, this is half mv square
minus के 0, but there is a component of mg sin theta which is present here, so this will be mg sin theta into the displacement s. This is equal to, यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स है, which is equal to फ्रिक्शन फोर्स into s. फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करोगे तो म्यू into r, it means that this half mv square plus mg sin theta into the displacement, this is equal to friction force mu into r. Mu into r is mg cos theta, this is mu mg cos theta into s. This will be the relation. तो इसका मतलब अगर आपको s निकालना है तो s will be calculated by using the relation half mv square, this is equal to mg बाहर ले लिया mu cos theta, बल्कि s आपको बाहर लेना है यहाँ पे क्योंकि आपको s कैलकुलेट करना है, तो s ही को बाहर रखो बस, s into mg पूरा बाहर ले लेते हैं. दिस इज इक्वल टू mu cos theta minus sin theta. This m will get cancelled out. You'll get s is equal to v square upon 2g mu cos theta minus sin theta. अब theta की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, जो भी theta होगा, you'll get the answer. This is the value of the braking distance, the distance in which the speed has been decreased from v to 0, and there is a component of weight which is acting in the downward direction, which is providing the contribution to the movement. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आपको ध्यान बस ये रखना है कि you have to apply the direct relation case of the stopping side distance, and in case the inclined surface is present, then you have to just resolve the forces, then you can apply the particular case. ध्यान रखना है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करेगा, हमेशा कोशिश करेगा कि इसको रोक लो मूवमेंट को. तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे बेसिक इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप ट्राई कर सकते हो. ध्यान ये रखना, जब साइट मिल गई है तो साइट मिलने के बाद स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है. साइट मिलने से, साइट मिलने वाले पॉइंट से लेकर ब्रेकिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो लैग डिस्टेंस होता है. ब्रेकिंग पॉइंट से स्टॉपिंग पॉइंट तक के जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, और जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो ये पूरा डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो दिस इज द केस इन विच यू कैन सॉल्व द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. फाइन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का. नेक्स्ट आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. देखो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का मैंने मतलब आपको बताया था कि इफ यू हैव टू व्हीकल्स व्हिच इज व्हीकल ए एंड व्हीकल बी, वी हैव दिस व्हीकल ए, वी हैव दिस व्हीकल बी. उसके बाद ये बी यहाँ से यहाँ तक आया था. जब तक ये बी यहाँ से यहाँ पहुंचा था उतनी देर में ए जो था वो थोड़ा आगे पहुंच गया था. तो आपके पास एक केस बन गया था. वो केस कुछ ऐसा था कि इस ए और बी के बीच में डिस्टेंस था ये एस मिनिमम का था. दिस वाज व्हीकल ए, दिस वाज व्हीकल बी, दिस वाज अगेन व्हीकल बी एंड दिस वाज व्हीकल ए. अब केस कुछ ऐसा बन रहा था कि ये वही मिनिमम था. सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जो यहाँ पे प्रेजेंट था दैट वाज एस मिनिमम, दिस वाज आल्सो एस मिनिमम. यहाँ पे हमें ये पता था जो डिस्टेंस बी ने ट्रेवल किया था दैट डिस्टेंस वाज स्मॉल बी, वेयर बी इज इक्वल टू 0.278 इनटू वी बी इनटू टी, क्योंकि टी टाइम में कवर किया था. टी टाइम में क्या कवर हुआ था, ए 1 से 2 पोजीशन पे पहुंच गया था. उसी टी टाइम में बी 3 से 4 पोजीशन पे पहुंच गया था. अगर बी 3 से 4 पहुंच रहा है तो बी कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्मॉल बी कवर रहा है. अगर इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. वो आपने बी ऊपर स्मॉल बी निकाल लिया है. आपको निकालना है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मैंने आपको बताया था d1 प्लस d2. दिस विल बी 0.278 प्लस, मान लो इसकी स्पीड रिड्यूस होकर वीबी के बराबर हो जाती है, इसकी भी तो स्पीड पहले से ही वीबी थी. आपको मैंने एक चीज बताया था, वो ध्यान रखना, ओवरटेकिंग तभी होती है जब वीए इज ग्रेटर देन वीबी. If VA is greater than VB, then only the overtaking operation can take place. It means that ये जो यहाँ पे व्हीकल ए पहले प्रेजेंट होगा, व्हीकल ए ने अपनी वैल्यू रिड्यूस की होगी, मैंने आपको ये भी बताया था पहले. इट मींस दैट व्हीकल ए पहले VA से आ रहा होगा बट उसने रिड्यूस करके पहले VB बनाया, तब उसने ओवरटेक करने का सोचा. इसका मतलब VA हमेशा VB से ज्यादा होगा. अगर कम होगा तो ये कभी ओवरटेक नहीं कर सकता. ये हमें 100% श्योरिटी है. क्वेश्चन में कभी कभी क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में कभी कभी ये कहा जाता है कि आपको सिर्फ VA प्रोवाइड कर देते हैं. अगर VA सिर्फ दिया है तो आप VB को VA माइनस 16 किलोमीटर पर आवर मानोगे. अगर नहीं दिया है तो इन दैट केस यू कैन अज्यूम VA minus 16 is equal to VB kilometer per hour. Now let's calculate the OSD. OSD is 0.278 into VB into TR. This is the lag distance plus D2. D2 का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, D2 आप कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले what you have to calculate, you have to calculate T. T is equal to under root of 4S minimum divided by A.
मान लो आपको एक्सेलरेशन दिया है 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस मिनिमम हम निकाल लेते हैं, हमें कोई नहीं है, तो एस मिनिमम इज इक्वल टू 0.2 इंटू वी। वी कितना है, जो भी स्पीड होगा, मान लो इसकी स्पीड 40 था, इसकी स्पीड भी 40 थी और इसकी स्पीड 60 थी, 60 से 40 बनाई, दिस इज 40 इंटू 0.2 वी बी प्लस एल, लेंथ ऑफ व्हीकल जो होता है जैसे 6 मीटर, दिस इज 0.2 वी बी प्लस एल। आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी, इसको उठा के ये विल पुट हियर। एक्सेलरेशन आपको ऑलरेडी 0.92 मिला, आपको मिल जाएगी टी की वैल्यू। इस टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये चीज पता है कि ओवरटेकिंग टाइम कितना है। तो ओवरटेकिंग टाइम अगर टी है तो डी2 की वैल्यू होती है 0.278 इंटू वी बी इज 40 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज डी2। D1 और D2 दोनों को ऐड कर दोगे, D1 हो गया लेग डिस्टेंस, D2 हो गया ये वाला डिस्टेंस। कैसे निकाला, पहले T निकाला, T से पहले स्पेसिंग निकाला, स्पेसिंग को यहाँ पुट किया, वो T की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में लगा दिया। वो T की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, B प्लस 2S के, तभी से ओवरटेकिंग हो पाएगी। इट मींस दैट यू कैन कैलकुलेट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस लाइक दिस। अगर यहाँ से C व्हीकल और आ रहा होता है तो आप C की वैल्यू, अगर स्पीड ऑफ C नहीं दिया है तो स्पीड ऑफ C को हमेशा स्पीड ऑफ A के बराबर मानते हैं। तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू D1 प्लस D2 plus D3. You will add all three of them. यहाँ पे D3 क्या होगा, this is 0.278 into VB, sorry into VC into कैपिटल T into VC into कैपिटल T। क्या वैल्यू है, ये वैल्यू D3, वो डिस्टेंस है जो C को पीछे भेजना है। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि A ने जब ओवरटेकिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है तब C ने A को देखा है, पहले नहीं देखा। अगर पहले देखा होता तो फिर रिएक्शन टाइम लेना पड़ता मुझे C का भी, इसलिए हमें बाद में देखा है। हमने इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट किया है कि C हमें बाद में देख पा रहा है जब हमने ओवरटेकिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जब आप यहाँ से यहाँ पे आओगे तब आपको C देख पाएगा, ऐसे समझ लो। तो इन दैट केस you will not include the reaction time of C, because the reaction time of C or the lag distance for C will also be included only when A has the sight of vehicle C before overtaking। पहले हो जाएगा तब ठीक है, otherwise you cannot add this particular case। अब बात करते हैं जो हमने नेक्स्ट टॉपिक कल कवर किया था, that was horizontal curve which is having a main topic that is super elevation। मान लो आपको कैलकुलेट करना है सुपर एलिवेशन, यू हैव टू डिजाइन अ सुपर एलिवेशन फॉर अ हॉरिजॉन्टल रोड फॉर अ सरफेस विद द स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड, ये आपको दिया हुआ है। फॉर दिस स्पीड यू हैव टू डिजाइन अ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन का मतलब यू हैव टू रेज द पेवमेंट थ्रू द इनर एज और थ्रू द सेंटर लाइन so that the forces which are present, all the forces get utilized and the no resultant force will be present on the particular vehicle। If resultant force will not be present then the vehicle will be in the neutral equilibrium। इसका मतलब सारी फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी और फोर्सेस कैंसिल होने की वजह से व्हीकल में कोई भी फेलियर नहीं आएगा, और व्हीकल अपना स्टेबल रहेगा। तो सुपर एलिवेशन निकालने के लिए अगर मान लो आपको स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यू विल कैलकुलेट ई कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू आर। आर मान लो आपको दे रखा है 400 मीटर्स, दिस इज इंटू 400। यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी लाइक, अगर ये वैल्यू आती है, मान लो मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स दिस वैल्यू इज 0.146 फॉर एग्जांपल, ठीक है, वैल्यू कोई भी आ सकती है। नाउ वी नो दैट if this particular terrain is plain then this should not be greater than 0.07, but it is getting greater than 0.07। that means that you have to fix the value of E to 0.07, फिक्स किया, and you have to proceed to the next step। next step ये कहता है you will have to fix the value of E and you will have to calculate the value of F। यहाँ से आपने F निकाला फॉर फुल स्पीड विच इज 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 R। R को आपने रख दिया 400 और F की वैल्यू निकाली। मान लो F की वैल्यू आ गई 0.16, विच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.15। अगर 0.15 से कम आता तो E आंसर ये हो जाता, F आंसर जो आया होता वो हो जाता। बट अगर F की वैल्यू ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब ये है F ऊपर निकल रहा है, तो इसका मतलब F ऊपर जा नहीं सकता। E को भी लिमिट कर दिया, E को लिमिट कर दिया तो बचा हुआ F से सेटिस्फाई कराना था। अब F भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो F को भी लिमिट कर दिया। इसका मतलब अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट 0.07 प्लस 0.15 दिस इज इक्वल टू V डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 R। फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट V डैश व्हिच इज द चेंज डिजाइन स्पीड व्हिच मस्ट बी लेस देन द 100 किलोमीटर पर आवर। ये 100 से कम आएगा। दिस इज द केस ऑफ सुपर एलिवेशन। इस टाइप से सुपर एलिवेशन डिजाइन करने को आता है। इसको बोलते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब होता है यू हैव टू कीप F इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू कैलकुलेट E फॉर द फुल स्पीड V स्क्वायर अपॉन 127
R. This is known as the equilibrium super elevation. समझ में आ गया होगा। जब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हो तो सरफेस के आउटर और इनर सरफेस पे दोनों जगह सेम तरीके से बिहेवियर आता है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे सुपर एलिवेशन तो आउटर सरफेस पे ज्यादा प्रेशर आता है, इसकी वजह से जो पॉट होल्स बनते हैं वो आउटर सरफेस पे बनते हैं। बट अगर आप सुपर एलिवेशन दे देते हो तो आउटर सरफेस जो होगा, आउटर सरफेस का मतलब जैसे ये कर्व है, दिस इज द आउटर सरफेस। अगर आपने सुपर एलिवेशन दे रखा है तब तो प्रेशर इक्वल आ जाएगा तो इस पे और इस पे। बट अगर आपने सुपर एलिवेट कर रखा है, नहीं किया अगर आपने सुपर एलिवेट, तो ये प्रेशर जो होगा, ये प्रेशर इक्वल नहीं होता है, इस वाले पोर्शन पे ज्यादा आता है। कब? जब सुपर एलिवेशन नहीं दिया है। सुपर एलिवेशन कर दिया है तो प्रेशर प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों जगह दोनों सरफेस पे इक्वल प्रेशर आता है। फाइन। So these are the basic questions. We can say that the example question for the topic which we have covered in our last classes. You can relate with these questions and then practice the previous year question. There are some previous year questions which are a little difficult. I will discuss those questions in the class for the SSC, for the engineering services and for the GATE. So till then, just keep on revising this, keep on practicing this. It's AS Pandit signing off. Take care. Bye bye. Best of luck.